Okay. So, Sai Ram children, take out your books and copies and get ready for the class. And we'll start the class with Omkaram. Alright. So, join your hands and close your eyes. Get ready. All right, Sairam again. Sairam, ma'am. Wish you a wonderful morning. Now take out Sairam, your ma'am. copies, Sairam. Beta, take out your copies and start writing. We have to start with the question answers today, right? Yes, ma'am. Yes. So I'm assuming and believing that you all have completed the work that I gave yesterday in your copies, right? Yes, ma'am. तो किसी का नहीं हुआ है, you better finish today, बेटा, नहीं तो फिर backlog बढ़ता जाएगा, you'll not be able to write so much. Ma'am, हो गया. Yes, and in today, I think from tomorrow onwards, you'll be having your summer vacation, right? So you all Yes, have, ma'am. yes, so Last. today is the last class. So we'll meet after a month or so. So till that time, I want you to keep reading and preparing and improving your English skills also in the meantime. Okay, just don't, because it's very important. Language building, language understanding, and spoken English are very, very important. And I would like you to continue that. And you also have a PTM today. I hope you all have received the message. Yes, ma'am. Today's Yes, PTM. ma'am. Okay, so can you see the screen, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Everybody can see. We Yes, did. ma'am. Yes, ma'am. Really. Yesterday we did. Yes, ma'am. Yes, yesterday we did some new words, and we have made some sentences also. Okay. And Anshuman, I have seen that you have tried to make your own sentences, which is very good. There are just a few corrections which I have sent you, so you can change the things that those things in your this thing. Otherwise, you have made good effort in making sentences, so that's good. Because I asked you to make your own sentences, so I could see only Anshuman doing that. You also try, okay? All right. So now we have to. We did it till here yesterday. No, till here. So today we have to start with these. Reading is fun. The question answers. Question one. Start writing. What were the preparations in the palace for? What were the preparations in the palace for? The preparations were made for a grand dinner at the palace of the Maharaja of Travancore. Quickly start writing, beta. We have to finish the chapter today if possible. And I'm also seeing that you are not writing in cursive still. Lot of people have sent me the work in which I could see that they have not written in cursive handwriting. Beta, don't do that. Cursive is very, very important. Right from first and second, I am ensuring that children write in cursive. बिकॉज अदरवाइज एक बार ऐसे लिखने की अलग अलग लिखने की आदत पड़ जाएगी ना तो बहुत मुश्किल से जाती है.
and then in that way you are not able to increase your speed of writing, which is not good. अब धीरे धीरे आप बड़े क्लास में जा रहे हो तो speed of writing also has to increase simultaneously, right? So try and write in cursive writing. और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो समर वेकेशंस में कर्सिव राइटिंग की लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन बाय एनी बुक और यू कैन practice any sentence that you see in front of you and just scribble in the rough copy and try and writing in cursive writing so that it is good for you. All right, अलग अलग ऐसे लिखना मतलब does not good anymore. Are you listening? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, beta. So please practice cursive writing. Okay. Sorry. Thank you so much. Question number 2 is, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? The Maharaja went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner. क्यों गए थे महाराजा? द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू एग्जामिन. आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स. द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सर्वे the dishes that had been prepared or to see the dishes that had been prepared or were to be prepared. अपने वर्ड्स में भी चेंज कर सकते हो. जो मुझे ठीक लगा मैंने लिखा है, बट without any grammatical changes you can make 1 or 2 changes on your own. थोड़ा सा अगर बदल के भी आप लोग अपने वर्ड्स में आंसर लिखेंगे एग्जाम में, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी. एग्जैक्ट रट के आंसर लिखना is should not be the practice to be followed now, because you all have understood the chapter. It is better that you can write in your own words. हाँ, लेकिन grammatical mistakes नहीं होना चाहिए. Yes, someone wants to say something. मतलब you can change this answer in this way. The Maharaja went into the kitchen to see the dishes that had been prepared या to survey the dishes that had been prepared. एक दो words आप अपने मन से add कर सकते हो. I'll be very happy if you do that. Always be creative in whatever you do. Ma'am, done. Okay. Ma'am, next slide. Rabbits, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. हाँ लिख लो. No, लिख लो. ma'am. Okay, start. Right. 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे. Don't worry. जिनका ये स्लाइड हो गया, they can write question number 3 from the textbook. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? तब तक क्वेश्चन लिखो बुक से. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? एक हमारी 2 चीज रह गई. एक मुझे लग रहा था कि एक डिक्टेशन मुझे लेना था, वो नहीं हो पाया है, and report writing also has not been. We'll take it after the vacations. Okay, report writing is very important. I wanted to teach you. Okay, so I'm changing the slide now. Question number 3. What had No, the... ma'am. दिखाइए मैम, पीछे दिखाइए एक बार. No, ma'am. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो बेटा. The Maharaja went into the kitchen to examine /see/survey the dishes that had been prepared for the grand dinner. Next question is, what had the No, cook... ma'am. I do. जल्दी लिखो बेटा. Ma'am, done. Okay. No, ma'am. Now question number 3 is, what had... किसका रह गया?
The Maharaja went into the kitchen. जल्दी लिखो जिसका रह गया. The Maharaja went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner. Okay, now I'm moving to question number 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? Cook ने क्या plan किया था initially vegetable scraps को करने का? Answer 3. The cook had planned to throw away the vegetable scraps. Cook ने क्या plan किया था? एक basket में उसने collect कर लिए थे सारे छिलके, vegetable peels and all, and he had planned to throw them away. उसने सोचा था ये तो मैं फेंक दूंगा इसका, तो वो उसने कुछ सोचा नहीं था करने का. So the cook had planned to throw away the vegetable scraps. Ma'am, सब लोग done. दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Ma'am, done. Especially all the boys, they are writing or not? Ma'am, done. आज मैं ये Ma'am, presentation yes. देखने वाली हूँ. Ma'am. हाँ, Ma'am, done. यहीं पे लिखना है. मैं presentation नहीं भेजने वाली आज, क्योंकि नहीं तो तुम लोग लिखोगे नहीं. Ma'am, next slide. No, ma'am. Question answers तो 3 ही थे. Now let's come back and see it in the textbook, page number 12. Page number 13, sorry. जल्दी लिखो जिसका नहीं finish हुआ है. The cook had planned to throw away the vegetable scraps. Ma'am, Yes. एक बार ऊपर का दिखा दो. क्या दिखाऊं? इससे पहले वाला slide? Done. Ma'am, done. ये वाला? मुझे पहले वाला दिखाओ ना थोड़ा. हाँ, ये इससे पहले वाला ही है. देखो. मैम 3 क्वेश्चन आंसर बता दो थोड़ा सा. Answer 3 है the cook had planned to throw away the vegetable scraps. Ma'am, done. Okay. So अभी the vegetable scraps. Yes, मैम हटा दीजिए, हो गया. हाँ, okay. Now come to page number 13 of textbook. Ma'am, page number 13. Question answers 3 ही थे. We have done those. Now coming back to the exercises of the textbook. Come to page number 13. A recipe is a list of directions to prepare a dish. Recipe क्या होती है? एक list of directions होता है जो एक dish को prepare होने में what is the sequence, one by one क्या procedure है, क्या आप करें, that is called a recipe. हम सबको पता है ये. The following sentences are not in order for preparing avial. हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था ना कि अवियल बनाने का क्या प्रोसीजर है. पढ़ा Yes, ma'am. हाँ, तो अब मेरे को लगता है we should take out the chapter once again. क्या? Let me open the chapter. फिर उसमें हम प्रोसीजर भी देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया था अवियल. Let me open the textbook. जिसके पास बुक नहीं है बेटा, they can see the screen. अवियल बनाने के लिए first let's go to the chapter. तो उसने exactly क्या किया था? ये इस पेज पे है ये, ठीक है? Can everybody see this page? Yes, ma'am. पेज नंबर 11 पे पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है ये. ओके. So what did he do? He first Clean them. Clean them and wash vegetable scraps. he took all the vegetables, washed them and cleaned them. Then he cut them. अभी मैं बुक से पढ़ रही हूँ पेज नंबर 11 पे ऊपर यहाँ पे. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. Attempting. Cut the vegetable scraps into long strips. Second. Yes. So पहला first one is done for us. First one is this. ये wash and clean the mix
ऑफ वेजिटेबल बिट। सबसे पहले उसने वॉश एंड क्लीन कर लिया था, इसका नंबर ऑलरेडी डला हुआ है 1, ठीक है। फिर सेकंड क्या किया उसने, ही कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप्स में उसने सारे वेजिटेबल पील्स को काट दिया, स्क्रैप्स को काट दिया। सो वील पुट क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेप नंबर 2 हियर, ठीक है। इसको हम लोग लिख के देखते हैं। मैम थर्ड नंबर सबसे पहला वाला आई थिंक सो। एक सेकंड, इसमें पॉइंटर क्यों नहीं चल रहा है? दिस इज नेवर माइंड। चलिए तो सब लोग क्या करेंगे, सेकंड किस पे लिखेंगे, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। हाँ, तो सब लोग क्या लगा देंगे 2। देन विच इज द थर्ड स्टेप, व्हाट डिड ही डू, Grind some coconut, paste of coconut, green chilies and garlic. So he grind, the जो third step है वो आएगा grind some coconut, green chilies and garlic. नंबर वाला ठीक है, फर्स्ट जो, हाँ जो फर्स्ट दिया है वो थर्ड नंबर, उस पे हम मार्क करेंगे। देन व्हाट डिड ही डू, ही whipped some curd and mixed it. उसके बाद उसने क्या करा, उसमें से कुछ दही डाला उसमें, whipped some curd and mixed in it. So उसके आगे हम लिख देंगे पॉइंट स्टेप 4, whip some के बाद 4, ठीक है। मैम इसके बाद pour some coconut oil, फिर उसने क्या किया था, कुछ कोकोनट ऑयल भी ऊपर से डाला था। So pour some coconut oil will be step number 5. decorate curry leaves. Yes. Then what did he do? decorate with curry leaves. Yes. And And then seventh- finally 7th is that our avial is ready. उसका avial उसके बाद ready हो गया था। 7th task. Right. ठीक है। तो coming back to this, what is the sequence of events? Yeah. This is the final. 3, 2, 1, 6, You can look 4, at the screen. 1 was wash and clean the mix of vegetable bits. Second, cut the vegetable scraps into long strips. Then grind some coconut. जिसने बुक में नहीं ठीक से मार्क किया, एक बार स्क्रीन पे देख के फटाफट नंबरिंग कर लो बेटा। Grind some coconut, green chilies and garlic. Then whip some curd is point number 4. Then pour some coconut oil is step 5. Decorated with curry leaves, point 6. And 7, finally our avial is ready. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Back Yes, to the, ma'am. now coming back to the text. Page number 13 पे फिर से आ जाइए सब लोग टेक्स्ट बुक पे। Given in the box are some things that children do after they reach home from school. जब हम स्कूल जाते थे, जब हम घर वापस आते थे, तो हम लोग क्या क्या करते थे घर आने के बाद, उसके कुछ स्टेप्स इस बॉक्स में दिए हैं, उसको हमें एक सीक्वेंस में अगेन वी हैव टू राइट। सो पहला है, मतलब वी हैव टू राइट देम इन ऑर्डर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं। तो पहला है पैक स्कूल बैग, पुट अवे स्कूल बैग, हैव लंच, रीड अ स्टोरी बुक, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, sleep for a while, wash up, do the homework, watch TV, go to play, change out of school uniform. Right? तो सबसे पहले स्कूल से आने के बाद हम क्या करते हैं? Ma'am, put away school bag. Yes. So first I put away my school bag. Ma'am, second is change out of school uniform. Yes. Ma'am, next is wash up. Have lunch. Next Is have is lunch. wash up. Wash up. Wash up. And next is have lunch. Have lunch. Have lunch. फिर हाथ मुंह धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भूख लग रही होती है उस समय बहुत जोर से, तो देन वी हैव आवर लंच, है ना। फिर लंच के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मम्मी से बातें करते हैं ड्यूरिंग लंच टाइम, आज हमने स्कूल में ये किया, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे ये Ma'am, कहा। watch TV. Watch TV.
हाँ TV. नो देन स्लीप फॉर अ वाइल. दोपहर को कौन टीवी देखता है? स्लीप फॉर अ मैम वाइल. मुझे दोपहर को नींद नहीं आती. यस मैम, मैम मुझे भी नहीं आती है. मैम मुझे भी नहीं आती है. दोपहर में टीवी देखते हैं. मैं तो बोर होती रहती हूँ. ओके ओके ओके. मैम हम दोपहर को तो स्टडी करते हैं. अच्छा ठीक है, जो ठीक है, नो प्रॉब्लम. हम अभी क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्लीप फॉर अ वाइल. ठीक है. देन फिर हम क्या करेंगे? टीवी. वॉच टीवी. ओके. नो मैम वो तो रात को वो कर तो रात को, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, वो रात को आना चाहिए. उसके बाद व्हाट वी विल डू आफ्टर गेटिंग मैम गो टू प्ले. गो टू प्ले. रीड स्टोरी बुक. गो टू प्ले. नहीं, गो टू प्ले. डू द होमवर्क. Go to play. Then डू द होमवर्क. हाँ, Do after the playing, homework. do the homework. Then pack your school bag for tomorrow, है ना? होमवर्क करने के बाद जब हम लोग फाइनली हम लोग क्या Yes, करते हैं, ma'am. बैग वापस पैक कर लेते हैं. देन वॉच टीवी, फिर आ जाएगा वॉच टीवी. देन रीड अ स्टोरी बुक, है ना? रात को सोते समय जनरली स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग. Yes. सॉरी, क्या? अरे मैम एक रह गया. चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल. हाँ, वो तो दोपहर को, लंच के बाद, सोने से पहले. वो 5th नंबर में आ गया. हम्म. यस मैम. ठीक है. तो नंबर 1 क्या हो गया हमारा? पुट अवे स्कूल बैग, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, वॉश अप, हैव लंच, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, स्लीप फॉर अ व्हाइल, गो टू प्ले, डू द होमवर्क, पैक स्कूल बैग, watch TV and read a story book before sleeping finally at night, है ना? ये सीक्वेंस हो गया हमारा. लिख लेंगे आप लोग बुक में ये सारे. अभी नंबरिंग कर लो. Yes, ma'am. मैम. All right. Now coming to page number 14. The Maharaja. Let's talk वाला जो section है. Now we are there. The Maharaja was a wise man. Wise मतलब समझदार. And ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. उसने क्या कहा कि इस vegetable scraps को waste नहीं करना है. Think of something, कुछ भी सोचो लेकिन इसको use करो, इसको फेंकना नहीं है. So he was a very wise man. He didn't want to throw and waste any food material. Even he wanted to make something out of the waste vegetable peels. So he was a wise man. ये सोच के हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ही समझदार और learned व्यक्ति थे महाराजा. Now name some of the things which are thrown away at home or in school. घर पे और स्कूल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो तुम लोग को लगता है ये तो वेस्ट है और इसको हम लोग फेंक सकते हैं, which is not of our use. ऐसी कौन सी चीज है? मैम घर पे प्लास्टिक स्क्रैप्स, एंड मैम पेपर. पेपर. यस, पेपर स्क्रैप. कितनी बार हम लोग क्लास में पेपर कटिंग करते हैं और हम उसको फेंक देते हैं. तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? नेम सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर थ्रोन अवे एट होम. वी कैन राइट स्क्रैप्स ऑफ पेपर. मैंने अपने मर्जी से कुछ भी लिखा है. तुम लोग को अगर कुछ डिफरेंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं. मैंने लिखा है स्क्रैप्स ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, यूज्ड अप बॉल पेन्स. कभी कभी हमारे पेन फिनिश हो जाते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं. बट वी कैन अगेन थिंक ऑफ समथिंग, कुछ भी उसको हम लोग we can reuse it. जब मैम हम तो उसे रीयूज करके पेन बनाते हैं. हाँ, बना सकते हैं. राइट. So use the ball pens, vegetable peels. लिख ये इन सब में से कुछ कुछ तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है. वेजिटेबल पील्स, लीव्स एंड ट्विग्स, लेफ्ट ओवर फूड. कभी कभी हम लोग टिफिन खाते हैं. स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स. हाँ, स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स भी फेंक देते हैं. और कभी कभी हम लोग जो पत्ते हैं हमारे उड़ के आ जाते हैं घर के आसपास, तो उनको भी हम लोग साफ करके इधर उधर फेंक देते हैं. जबकि उनको हम लोग कुछ भी चीजों में वेस्ट कार्डबोर्ड मैंने लिखा है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, यूज्ड अप पेपर, समझ के तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है. आई हैव जस्ट गिवन एन आइडिया. यू कैन सी दैट, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. फिर सेकंड है सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक. अगर हम क्लासरूम में होते ना बेटा, बीच में नहीं बोलो. लेट मी
finish. Okay. Sit in groups of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. अब इन सब को कैसे हम लोग इंटरेस्टिंग वे में यूज कर सकते हैं, जो हमारे ये जो वेस्ट जिनके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है. तो अभी हम क्लासरूम में होते ना, तो आई वुड हैव मेड ग्रुप्स ऑफ 4 एंड यू वुड हैव थॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वेज. पर यहाँ पे आई हैव सजेस्टेड अ फ्यू वेज. आपको पेपर मैशे पता है क्या होता है? जो पेपर Yes, की ma'am. कटिंग्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कभी पल्प बना के उसको सुखाते हैं एंड वी मेक डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ इट. जैसे कोई मुखौटा बना लिया, कोई मास्क बना लिया, या कोई वॉल पेंटिंग इस तरह की बना ली. तो पेपर को, जो वेस्ट पेपर होता है, उसको पल्प बनाया जाता है वाटर के संग मिक्स करके, देन उसको ड्राई किया जाता है एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड आउट ऑफ दैट. सो दैट इज कॉल्ड पेपर मैशे. So waste paper can be most efficiently used in making things out of paper mache. So I have written that. फिर we can make, जैसे अगर हमारे पास कोई चूड़ियाँ कोई है जो टूटी है, या कोई पत्ते हैं, या कोई ऐसा पुराना कैलेंडर है जिसमें अच्छी सुंदर पेंटिंग है जिसको कट करके यूज किया जा सकता है, तो we can make decorative articles out of waste products also, है ना. और अगर हमारे पास कुछ वेजिटेबल पील्स हैं, या लेफ्ट ओवर फूड है, या पत्ते हैं, तो ये सब जो है, इससे हम क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं. कंपोस्ट क्या होता है? आई होप तुम लोगों को पता है. कंपोस्ट इज समथिंग मैम खाद. which is biodegradable waste. हाँ. मैं left हो गई थी क्योंकि नेटवर्क इशू में बहुत बार लेफ्ट हो चुके. आप वापस से बोल सकते जब आप बोल रहे थे. हाँ, मैं बस यही बोल रही थी कि कैसे हम लोग ऊपर जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं, उनको हम लोग कैसे इंटरेस्टिंग वेज में यूज कर सकते हैं, सो दैट वी मेक समथिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. तो जो पेपर पीसेस हैं, उसके साथ हम लोग पल्प बना के वाटर के संग सुखा के पेपर मैशे बना सकते हैं. और कुछ हमारे पास लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, बैंगल्स हैं टूटी हुई, या कुछ भी ऐसे हमारे पास ग्लिटर पेपर है, या कुछ है, या कोई यूज्ड कैलेंडर्स के सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, तो उनसे हम लोग डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बना सकते हैं. एंड जो वेजिटेबल या कुछ खाने से रिलेटेड वेस्ट है हमारा, कि लेफ्ट ओवर फूड है, सपोज हमने ब्रेड के किनारे नहीं खाए और हमने उसके वी हैव थ्रोन द साइड्स ऑफ द स्लाइस, तो वो है, उससे उससे हम लोग क्या बना सकते हैं. अगर वेजिटेबल के छिलके हैं, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, इन सब के छिलके हैं, इनको हमें रीयूज करना, तो हम इन सबको मिला के कॉम्पोस्ट बना सकते हैं. यानी कि एक हम छोटा सा बिन अपने गार्डन में बना सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं, जिसमें हम ये सारा वेजिटेबल पीस डाल सकते हैं, एंड वी कैन वेट फॉर इट टू बिकम अ कॉम्पोस्ट, यानी खाद. बायोडिग्रेडेबल तरीके से अगर हम उसमें अर्थवर्म्स छोड़ दें, तो वो थोड़े दिन में उस पुराने खाने को क्या बना देंगे, खाद में कन्वर्ट कर देंगे. सो वी कैन दीज 3 ways विच आई कुड थिंक ऑफ, इन 3 तरीकों से हम लोग रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया. यू कैन ऑल्सो मेक समथिंग आउट ऑफ वेस्ट. वी कैन डू दिस एज एन एक्टिविटी अपने फ्री टाइम में. अब तो छुट्टियां हैं, फ्री हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कुछ भी बना के यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप. तो मैं फेसबुक वाले पेज पे डालूंगी. ठीक है. मैम बहुत यूज करना चाहिए क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस भी आ गया, उसमें तो बहुत कम चीज इसलिए हर चीज हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि इट इज नॉट सेफ टू परचेज एवरीथिंग फ्रॉम द शॉप्स दीज डेज, क्योंकि दिस वायरस इज मच मोर इन द एयर दीज डेज. इसीलिए तो इस बार बिल्कुल भी बाहर जाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, क्योंकि पिछला वाला क्या था, इतना ज्यादा सुपर स्प्रेडिंग नहीं था इस बार से, क्योंकि इस बार इट इज इन द एयर. So we cannot buy a lot of things. So it is best to reuse something of our use from the waste that we produce. है ना, कि हमारे घर का जो वेस्ट है उसी से हम लोग कुछ अपने ही काम की चीजें बना सकें. तो कोई किसी को भी लगे कुछ इंटरेस्टिंग तरीका, तो वो लोग कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना के और मुझे ग्रुप में फोटोग्राफ के संग, और क्या आपका नाम है, आपने क्या बनाया है, एंड क्या क्या चीजें यूज करके बनाया है, वो सब लिख के मेरे को एक फोटोग्राफ उसकी आप भेज सकते हो एज एन एक्टिविटी. ठीक है, विल यू डू दिस? मजा आएगा ना करने में? यस मैम. ठीक है. यस मैम. मैम ये हमें कॉपी में लिखना है? यस मैम. नहीं, कॉपी में. दिस इज लेट्स टॉक. बेटा तुम लोग पढ़ते नहीं हो कि हमें क्या करना है. मैंने तुम्हें समझाया है कि हमें इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना. ये क्लास ब्लैक बोर्ड पे करने के लिए एक्टिविटी दी है, तुम्हें. नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. इसको लिखना है. सो इसको पहले पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है इसमें. सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, है ना. पेज नंबर 14 पे फिर से आ जाएंगे हम लोग.
some words have more than one meaning. For example, point. पॉइंट जो एक वर्ड है उसका जो नाउन फॉर्म है उसका मतलब होता है अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप. जैसे पॉइंट क्या होता है हमारा, एक डॉट या फुल स्टॉप, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉइंट बोलते हैं, है ना. और अगर हम इसी को एक डेसिमल की तरह भी बोल सकते हैं, नंबर यू स्कोर इन अ गेम, ये भी पूरा पॉइंट है, नाउन फॉर्म ऑफ पॉइंट. बट अगर हम ये बोले व्हाई डोंट यू कम टू द पॉइंट, जैसे हम लोग घुमा घुमा के कुछ बात कर रहे हैं और हम एक्चुअली जो कहना चाह रहे हैं उस बात पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे से, व्हाई डोंट यू कम टू द पॉइंट, कि तुम एक्चुअल क्या बोलना चाह रहे हो वो बोलो. तो वो उसका वर्ब फॉर्म हो गया पॉइंट का, कि टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, एक पर्टिकुलर एक चीज पे अटेंशन आपका लाना, सो दैट इज पॉइंट. सो वर्ब फॉर्म ऑफ पॉइंट विल बी टू bring your attention to a particular thing, point it out. हम कहते हैं ना point out करो कि क्या हो रहा है, point out your mistakes, point out your strengths, point out your weaknesses. तो कुछ to bring an attention regarding something to, है ना. और noun form का मतलब है कि full stop, decimal, point, जैसा हमें पता है ना, point to point जैसे line बनानी है हमें, तो that is the noun form. So इसी तरह से कुछ words नीचे दिए हैं, जैसे ground, survey, scrap, sternly, tempting, इन सब के मोर देन वन मीनिंग है. तो हमें ये देखना है कि कौन सा नाउन का है और कौन सा वर्ब का है. सो सी स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग, ग्राउंड का नाउन फॉर्म जो है वो है सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्राउंड हम लोग बोलते हैं जो हमारे सामने है, कि चलो ग्राउंड पे खेलने चल रहे हैं क्या, ग्राउंड, सरफेस ऑफ द अर्थ, या बेस, एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. किसी स्पेशली किसी या पीटी ग्राउंड हो गया या परेड ग्राउंड हो गया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्राउंड यूज होना हो तो उसके लिए कहते हैं विच, एन एरिया विच इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड ग्राउंड. या सरफेस ऑफ द अर्थ इन जनरल, जहाँ पे कोई स्पेस हो ग्राउंड में, अर्थ पे स्पेस हो, उसको नाउन फॉर्म विल बी ऑफ ग्राउंड विल बी दिस. और इसी तरह से वर्ब फॉर्म जो कि हमारे चैप्टर में यूज हुआ है, दैट वुड बी द पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, यानी क्रशिंग समथिंग इनटू अ पाउडर फॉर्म. सो वर्ब वुड बी क्रशिंग. एक्शन क्या हो रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है, यानी उसको पीसा जा रहा है. सो ग्राउंड ही वर्ब फॉर्म में क्या बन गया, क्रशिंग ऑफ समथिंग इनटू अ पाउडर फॉर्म. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, जो डिफरेंस है, नाउन फॉर्म वाला ग्राउंड अलग था और पीसने वाला ग्राउंड वर्ब फॉर्म का था, वो अलग था. समझ में आ रहा है? मैम आप हाँ. वापस से समझा सकते हैं? नहीं आ रहा? नो मैम. मैं फिर से बताती हूँ. देखो, जैसे हमारा एक वर्ड है ग्राउंड. ग्राउंड जो वर्ड है वो एक, उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है. तो हमें क्या पता है, एक मीनिंग हमें ये पता है कि ग्राउंड मतलब जैसे प्ले ग्राउंड हो गया, कोई कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत हम लोग खेलने जाते हैं, जहाँ पे बहुत स्पेस है, जो हमें क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा सा एक प्ले ग्राउंड मिल गया, तो उसको हम कहते हैं चलो भाई रोज ग्राउंड पे जाके खेलना है. तो कोई ऐसा सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई बेस, एक ग्राउंड है उसका, जहाँ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जैसे एक एरिया को यूज किया जा रहा है, तो वो तो ग्राउंड का हो गया नाउन फॉर्म, जो हम जानते हैं कि चलो प्ले ग्राउंड में चलते हैं, चलो परेड ग्राउंड चलते हैं, पीटी ग्राउंड चलते हैं, ठीक है. एक तो नाउन फॉर्म हो गया ग्राउंड का. और एक फॉर्म होता है वर्ब फॉर्म, यानी कि जो हमारे चैप्टर में यूज हुआ है, कि उसने क्रश करा था ना, क्या क्या क्रश किया था उसने, कुक ने कुछ ग्राउंड किया था, कुछ पेस्ट बनाया था, गार्लिक, चिलीज और कोकोनट का एक पेस्ट सा बनाया था ना उसने, तो वो उसने क्या किया था, ग्राउंड किया था, यानी पीसा था. तो ये ग्राउंड ही वर्ड का वर्ब फॉर्म आ गया. पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, क्रशिंग इट इनटू ग्रेन्स और अ पाउडर. ठीक है. तो ग्राउंड वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग है, एक नाउन फॉर्म में, एक वर्ब फॉर्म में. इसी तरह से सर्वे वर्ड है, उसका नाउन फॉर्म क्या है, कि एक जनरल लुक, इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, ध्यान से देखना जाके है. और वर्ब फॉर्म क्या है, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यू. तो इसी का नाउन फॉर्म भी है और एक वर्ब फॉर्म भी है. ऐसी थर्ड वर्ड है स्क्रैप. स्क्रैप का नाउन फॉर्म है क्या, वेस्ट मटेरियल, जो कि हमें यहाँ से यूज हुआ है. और वर्ब फॉर्म क्या है, डिस्कार्ड, स्क्रैप इट. कभी कभी हम सेंटेंस में कहते हैं स्क्रैप दैट थिंग, यानी उसको फेंको, डिस्कार्ड करो. और अगर हम नाउन फॉर्म में करेंगे तो ही यूज्ड वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी ही यूज्ड वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल. तो ये हो गया उसका. सेंटेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पे स्क्रैप नाउन फॉर्म में है, कहाँ पे स्क्रैप वर्ब फॉर्म में है. अगर हम सेंटेंस में कहते हैं स्क्रैप इट, यानी थ्रो इट, डिस्कार्ड इट,
तो वो हो गया उसका वर्ब फॉर्म, क्योंकि हम कुछ एक्शन कह रहे हैं कि इसको फेंको, फेंको एक एक्शन हो गया, तो इसीलिए उस तरह से स्क्रैप का मतलब हो गया डूइंग सम एक्शन, यानी थ्रोइंग इट, सो डिस्कार्ड इट, इट इज यूजलेस, इट इज यू कैन थ्रो इट, सो दैट इज द वर्ब फॉर्म। और अगर हम बोलते हैं कि हमने क्या यूज करके बनाई है ये डिश, वेजिटेबल पील्स को स्क्रैप, वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज करके बनाई है, तो उस केस में वेजिटेबल स्क्रैप्स हमारा क्या बन गया, नाउन फॉर्म बन गया। आ रहा है समझ में? यस मैम, पर इसे राइट करना है। यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम वी Yes, कैन ma'am. राइट इट। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट? तो ठीक है, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों यस वर्ड के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है? यस मैम, की वर्ब में अलग होता है और नाउन में किसको अलग नहीं होता आया? हाँ, सेम वर्ड वर्ब फॉर्म में अलग यूज होता है, नाउन फॉर्म में अलग यूज होता है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई हैव यूज वेजिटेबल पील्स टू मेक दिस डिश, तो उसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स, पील्स नहीं, वेजिटेबल स्क्रैप्स। अगर मैं बोलती हूँ आई आई हैव यूज्ड वेजिटेबल स्क्रैप्स टू मेक दिस डिश, तो उसमें उस स्क्रैप का मतलब है नाउन फॉर्म, यानी उस चीज का नाम, वेजिटेबल स्क्रैप से मैंने ये बनाई है, तो वहां पे स्क्रैप एक नाउन फॉर्म हो गया। और अगर मैं कहती हूँ स्क्रैप दैट प्लास्टिक टॉय, यानी उसको फेंको, वो प्लास्टिक सड़ गया है, खराब है, उसको आप फेंक सकते हो, सो आई एम सेइंग स्क्रैप इट, यानी आई एम सेइंग टू थ्रो इट, सो दैट बिकम्स द वर्ब फॉर्म। स्क्रैप को ही कैसे फॉर्म में यूज किया गया है, वर्ब फॉर्म को। ऐसे ही फोर्थ वर्ड है हमारा स्टर्नली। स्टर्नली का मैंने बताया था स्ट्रिक्टली, फर्मली, है ना, तो वो तो एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होता है, क्या हमने एडवर्ब्स पढ़े हैं? No. No, ma'am. अभी नहीं पढ़े मैम हैं। जो वर्ब की क्वालिटी बताता है। वर्ब की क्वालिटी बताता है कि मैंने सपोज मैंने डांटा, आई स्कोल्डेड द चाइल्ड स्टर्नली, हाँ, तो स्कोल्डेड तो वर्ब हो गया कि क्या किया मैंने, डांटा, स्कोल्ड किया, लेकिन कैसे वो एक्शन किया, कैसे डांटा, स्टर्नली डांटा, तो वहां पे वो कैसा बन गया, एडवर्ब बन गया। जैसे एडजेक्टिव क्या करता है, हमको मैम जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, नाउन की क्वालिटी। नाउन की विशेषता बताता है। ऐसे एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, तो एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा, ब्रेव, है ना, लेकिन किसके लिए ये ब्रेव यूज हो रहा है, एक बॉय के लिए, एक नाउन के लिए, सो वो किसकी विशेषता है कि वो ब्रेव है, एक नाउन की विशेषता है, सो दैट इज एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ही रैन वेरी फास्ट, तो उसमें वर्ब क्या हो गया, रैन, भागना, लेकिन वो कैसे भागा, वो फास्ट भागा, वेरी फास्ट, सो वेरी फास्ट बिकम्स द एडवर्ब, जो वर्ब की भी विशेषता बताए कि किस तरह से वो एक्शन किया जा रहा है, फास्ट करा जा रहा है कि स्लो किया जा रहा है कि कैसे किया जा रहा है, तो वो हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे स्टर्नली मतलब किसी भी चीज को स्ट्रिक्टली करना, तो कैसे करना, स्ट्रिक्टली करना, इसीलिए स्टर्नली क्या है, एक एडवर्ब है। आई स्कोल्डेड, आई टोल्ड, बट हाउ डिड आई टेल, आई टोल्ड स्ट्रिक्टली, आई टोल्ड स्टर्नली, है ना, तो इसीलिए ये क्या है, स्टर्नली बिकम्स अ एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट इज टेम्पटिंग। अरे टेम्पटिंग इसमें मिक्स हो गया, रुको, tempting is another word. Let me do some correction in the slide. Okay, just a second. मैम वी कैन राइट इट। हाँ, you can write it in the book itself. जो मैम blanks दिए ना, हाँ, नॉट राइट इट। अच्छा इट्स ओके, मैं भेज दूंगी ये वाला स्लाइड, ठीक है, लिख लेना। फिर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, कैसे है वो डिश, कैसी है, टेम्पटिंग है, तो नाउन फॉर्म की विशेषता बताई जा रही है कि हाउ इज दैट डिश इज वेरी टेम्पटिंग। ओके, आप देखो इसका क्या मतलब, अल्यूरिंग एंड इंड्यूसिंग, इंडाइसिंग, ये हमने कल इसका मीनिंग भी पढ़ा था, तो दिस हियर टेम्पटिंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 15. मेक न्यू वर्ड्स, ये भी बुक में ही आप लिख सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट वाला भी. मैम ये तो बहुत इजी है। हाँ ये बहुत इजी है. पाउंड का क्या बन जाएगा? पाउंडेड एंड पाउंडिंग. लेकिन पाउंडर कोई वर्ड नहीं होता, पाउंडेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, तो इसीलिए बाकी दो जगह हम क्रॉस लगा देंगे. तो जल्दी से बुक में इसको फिनिश कर लो. ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइड एक वर्ड होता है, ट्राइंग एक वर्ड होता है, लेकिन ट्रायर कोई वर्ड नहीं होता, ट्राइएस्ट कोई वर्ड नहीं होता. तो बाकी दो जगह हम क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे. फिर लार्ज, थर्ड वर्ड है हमारा लार्ज. अब लार्ज्ड, ईडी तो कोई वर्ड नहीं होता, लार्जिंग भी कोई वर्ड नहीं होता, तो हम इन दोनों में क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे. बट लार्जर वर्ड होता है और लार्जेस्ट भी होता है, तो उसको हम लोग लिख देंगे. मतलब एंड में क्या आ रहा है? ईडी आ रहा है कि आईएनजी आ रहा है? व्हाट इज द रूट वर्ड दैट इज कमिंग? सो हियर वी हैव टू राइट दोज. ठीक है. फिर एक वर्ड है न्यू. न्यू, NEWED कोई वर्ड नहीं होता, NEWING न्यूइंग भी कोई वर्ड नहीं होता. हाँ लेकिन न्यूआ होता है, इट इज अ न्यूअर टॉय. और न्यूएस्ट यानी सबसे ज्यादा न्यू, है ना, दैट इज द लास्ट फॉर्म, न्यूएस्ट. तो न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट. सो EST वाला भी होता है, न्यूएस्ट. फिर टेस्टी, टेस्टेड भी वर्ड होता है, टेस्टिंग भी होता है, टेस्टियर भी होता है और टेस्टीएस्ट भी होता है. सो टेस्टी एक ऐसा वर्ड है जो ED से भी एंड होता है, ING से भी हो सकता है, ER से भी हो सकता है और EST से भी हो सकता है. तो इसमें चारों ही है. सो यू कैन राइट ऑल द 4. फिर वाइज, वाइज में ED लास्ट में, वाइज्ड कोई वर्ड नहीं होता, वाइजिंग कोई वर्ड नहीं होता. हाँ लेकिन वाइजर होता है, WISER, वाइजर. ही वॉज वाइजर देन हिज कलीग्स. बाकी सब फ्रेंड से वो कंपैरेटिवली ज्यादा समझदार, ज्यादा वाइजर था. और वाइजेस्ट, अगर 3-4 लोगों में सबसे ज्यादा कौन वाइज है? राम इज द वाइजेस्ट ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स. सो वाइजेस्ट इज ऑल्सो अ वर्ड. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. देन स्टेयर, स्टेयर, स्टेयर्ड वर्ड होता है, स्टेयरिंग भी. घूरना. हाँ, स्टेयर्ड यानी उसने उसको पास्ट टेंस में घूरा था, स्टेयर्ड, RED, स्टेयर्ड. फिर स्टेयरिंग, वो अभी घूर रहा है, प्रेजेंट में घूर रहा है. फिर स्टेयरर कोई वर्ड नहीं होता, स्टेयरेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, तो बाकी दो जगह हम क्रॉस लगा लेंगे. फिर लास्ट वर्ड है हमारा क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट. चारों ही तरह से वो एंड हो सकता है. सो वी कैन राइट दीज 4. ओके, मैम डन। डन. नो मैम, डन मैम, डन. हाँ, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वो भी अपना लास्ट क्वेश्चन. ओके, मैं स्क्रीन पे लिखा रखा हुआ है वो स्लाइड, तुम देख सकते हो. आई एम कमिंग बैक टू द बुक. नाउ फाइंड आउट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम फॉर अ फीस्ट. आप लोग के घर पे ये अपने आप करने वाली एक्टिविटी है कि घर पे जब फेस्टिवल्स में फीस्ट होता है या ग्रैंड डिनर होता है तो क्या क्या आप लोग खाते हो? जनरली हम लोग क्या खाते हैं? खीर खाते हैं, कोई कुछ हलवा बनता है, गाजर का हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, अलग अलग तरह की सब्जियां बन रही हैं. मैम मटरी, भुजिया, पूरी. हाँ, यस. तो वी कैन राइट ऑल द थिंग्स दैट वी ईट इन फेस्टिवल्स. ये तो अपने आप लिख लेंगे, इसमें तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. अपने घर में जो जो बनता है वो सब लिख सकते हैं. फिर सेकंड पॉइंट है, जब जब आप लोग अनवेल होते हैं, व्हेन यू आर नॉट वेल, तब आप लोग क्या खाते हैं? तब तो भाई खिचड़ी खानी पड़ती है. मैम दलिया, मैम दवाइयाँ, खिचड़ी, दलिया. You can write dalia and khichdi. And रोज क्या खाते हैं? Every day what we eat? दाल, चावल, रोटी and vegetable. Right, roti sabzi. We eat Maggi, chowmin and this. Okay. So you can write every day में हम लोग every day तो नहीं खाते हैं मैगी चाउमिन. Every day में क्या खाते हैं वो हम लिख सकते हैं. We can eat दाल, we can all eat vegetables. chapati, all vegetables. Very good. ठीक है. Then next question is, avial is a dish made in Kerala. Do you have a similar dish in your state? अपने स्टेट की कोई ऐसी फिक्स डिश है जो कि बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स. अगर किसी को पता है तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स लिख के ट्राई कर सकते हैं. ठीक है.
तो हम लोग समर वेकेशन में क्या करेंगे, ये एक्टिविटी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक्टिविटी करके मुझे भेजेंगे ग्रुप पे, और किस चीज से बनी है, क्या चीज मिलके बनाया है, यू कैन राइट द things that are used to make that also. Will you do that activity? मैम हमें आपको पर्सनल पे भेजना है एक्टिविटी। पर्सनल पे भी भेज सकते हैं, ग्रुप पे, पर्सनल पे नहीं, ग्रुप पे ही भेजिए, ताकि आपके फोटोज से बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो जाएं कि भाई हमें भी बनाना है, उसने कितना अच्छा बनाया तो मैं भी कुछ बनाता हूँ या बनाती हूँ। ठीक है, सब लोग मिलके बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ट्राई करेंगे। आप उसे फेसबुक पे भी डालोगी? वो ग्रुप जो है स्कूल का, उस पर मैं डाल दूंगी, जो मिली मैम को लगेगा ठीक मैम उसको डाल देंगी। ठीक है, but we can at least we can put it in the school group so everybody can see. मैम पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर फिनिश हो गया, थोड़ा सा टाइम अब जरूर हो गया, but we managed to finish it. So I wish you all the best for your vacations. Stay healthy, enjoy and keep studying also. ठीक है, Same to you, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you, मैम। Now let's join our hands and we meet also at the time of PTM today at 1 o'clock. All right, I'll be there as well. Okay, so join your hands, close your eyes. I'm sorry to extend the class for 5 minutes. Shanti, Shanti, Shanti. Saram. Bye bye. Thank you, ma'am. We'll try the best out of this. Thank you, ma'am. Bye bye.